privilege to introduce Dr. Sona Gupta, Sona Kaushal Gupta. Everyone knows her, and you must be hearing about her, taking a lot of workshops on mental health. So when I got her, biodata, I just couldn't actually imagine the number of things that she has done and what all she has achieved and the good that she is doing to society. So I just concised it a little bit. So here are those few words which I'm sure you should know about her. Dr. Professor Sona Kaushal, MBBS, MS, PhD, is not only a brilliant neuropsychologist but also a beacon of compassion and dedication in the field of mental health. An esteemed alumnus of King George's Medical University, Lucknow, she has spent decades as a professor at LLRM Medical College, Meerut, and Drew Medical College, Delhi, shaping future doctors with her vast knowledge and gentle guidance. As the founder of the Pari Foundation, Dr. Kaushal has tirelessly championed mental health awareness, drug abuse prevention, and suicide prevention through her NGO's 24/7 helpline. A recipient of the prestigious Dr. B.C. Roy Award, she has also been recognized for her excellence by the IMA in both Meerut and Dehradun. Her passion for healing is driven by the belief a healthy mind leads to a healthy body. Her warmth, empathy, and expertise have touched countless lives, making her not only a healer but also a true inspiration. So that's Dr. Sona Kaushal for you. Very brief, but she has achieved tremendously in a field what she is working on, mental health and people. So today, Dr. Sona Gupta is here to share her thoughts with you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, resume जब बनता है तो बनता ही चला जाता है, मतलब इतना बोलना कुछ नहीं है. So I'm just an ordinary doctor, transferred from KGMC. I'm basically a pathologist and a biochemistry professor. I've been teaching medical students. Lekin along the line, I got passionate about mental health psychology, and I was very passionate because I've seen a lot of depression and stress anxiety around. I've been a teacher all my life. I've taught the medical students, and I've been among students and teachers. आज मुझे बच्ची सर ने बोला जल्दी बोलना बहुत कम टाइम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी अपनी बात बोलना है. I'm thankful to Bhavik sir, Ramshi sir, and everyone, all my seniors here, for giving me this opportunity to talk to the teachers. I'm very passionate about teaching and about students. मेरा मेन काम बच्चों के साथ होता है. Peer pressure, self-esteem, depression, anxiety. आजकल सुसाइड प्रिवेंशन डे, तो हम लोग काफ़ी वेबिनार्स पे लगे हुए थे. We were there on webinars telling people, creating awareness कि सुसाइड क्या होता है, क्यों करते हैं लोग, और हो ही रही है. आज मैं पेपर पढ़ रही थी तो एक फिल्म स्टार के फादर ने पूछे, हाँ, अबाउट इट, कल सुसाइड प्रिवेंशन डे था, तो सीनियर सिटीजन पार्टी ऑल्सो जम्प. तो ये मेंटल हेल्थ बहुत गड़बड़ चीज़ है. ये अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलता, हमें खुद ही नहीं पता चलता ये अंदर क्या चल रहा है. और इसी को थोड़ा सा वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सो दैट आवर बॉडी रिमेन्स फिट एंड फाइन. लाइक 85 to 90% बीमारियाँ हमारी साइकोसोमैटिक हैं, जो डॉक्टर्स के पास भीड़ लगी रहती है. ऑल ऑफ देम आर डिजीजेज ऑफ द माइंड. स्ट्रेस के कारण शरीर में जो माइग्रेन्स, हेडेक्स, बॉडी एक्स, टमी एक्स, GIT, प्रॉब्लम, ये वो जितनी भी है 85 to 90%. अब तो कहते हैं कैंसर, ऑटो इम्यून सब स्ट्रेस रिलेटेड है, तो इसको शार्प रखना है. टीचर्स के लिए टुडे just like to give a few of my experience and my tips. I feel teachers are doing such a marvelous job. Their future generation हमारी shape करते हैं. So they need all our support. They need all our whatever we can do for them. Teachers का देखिए कितना important role है. एक टीचर एक घर
parent at house, she has her problems, she has her family to look after. उस family से सुबह 7 बजे early morning I see them, you know, going ready, बिल्कुल catching a bus या taking their vehicle going to school. School में जाके वो teacher, she is a teacher and she is a parent. In school उन बच्चों की वो parent भी है, जिन बच्चों को वो पढ़ा रही है, और वो teacher भी है. घर में भी वो parent, यहाँ आई तो फिर बहुत सेट ऑफ चिल्ड्रन. उसके बाद उसका अपना बैगेज है, काम करके भी देना उसको, जो भी है उसको करना है. उसके साथ साथ इट इज़ हर ओन फिजिकल हेल्थ ऑल्सो विच शी हैज़ टू लुक आफ्टर. तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ के शी इज़ वन पर्सन. जब वहाँ से निकल के जाती है देन अगेन स्विच ऑफ, घर में अगेन अ पेरेंट, अगेन अ फैमिली मेम्बर. सो बहुत ज़बरदस्त काम है. एंड हैट्स ऑफ टू आवर टीचर्स. लेकिन ज़रूरत ये है हमारे टीचर्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों. तो टॉपिक आज का विच आई जस्ट इंट्रोड्यूस टू बख्शी जी, आई सेड लेट्स स्पीक अबाउट इमोशनल वेलनेस इन टीचर्स. है ना, कैसे हम शांत रहें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे शांत हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं. अगर ये शांत नहीं है हमारा तो एवरीथिंग गोज डे बाय. एंड इट्स अ टेक्निक, दे आर टूल्स टू कीप दिस. ऐसे ही नहीं हो जाता है, क्योंकि आज 4 में से 2 लोगों को डिप्रेशन है. पैंडेमिक की तरह मेंटल इलनेस फैली हुई है. इमोशनल वेलनेस सबके नीचे है. बिल्कुल क्यों? मेरा तो ये मानना है इसलिए आज की डेट पे, बिकॉज व्हेन वी वर स्टार्टिंग एंड व्हेन माय सीनियर्स वर हियर, आपके टाइम पे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड कहाँ सुनते थे हम लोग? ये सब कुछ नहीं था. अब इतना क्यों हो गया? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, माँ बाप परेशान, बच्चे परेशान, टीचर्स परेशान, सुसाइड बढ़ रहे हैं. तो मेन कल्प्रिट इज दिस छोटा सा वेपन जो हम अपनी जेब में रखते हैं. दिस इज द मेन. ये ज़रूरत भी है और ये दुश्मन भी है. इसके अंदर जो कंटेंट है वो हमारा इमोशनल डाइट बना रहा है. जैसे फिजिकल डाइट से हमारा शरीर बनता है, हम लोग टेक अ बैलेंस डाइट. All our life long we've been told to take good food. Nobody has ever told us how to think well. But they've already just told us सही खाओ, सही पढ़ो, टाइम पे सो. ये तो बचपन से सुन रहे हैं. लेकिन क्या सोचो, कितना सोचो, कब तक सोचो, क्या नहीं सोचो, ये किसी ने नहीं बताया. क्योंकि किसी को पता ही नहीं है तो बताएगा क्या? पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि आज बच्चों के साथ बोले क्या. देयर इज अ गैप. हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस है, बच्चों पेरेंट चाइल्ड में डिफरेंसेस है, स्कूल्स में प्रॉब्लम्स हैं. सो इट्स अ बिग ऐसा प्रॉब्लम. ये है कि जो हम डाइट, जो हम इससे देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से. पहले तो ये चीज़ हमारे बेडरूम में आई, एक टीवी ब्लैक एंड वाइट आया कुछ साल पहले, 2 डिकेड्स पहले. एक आध सीरियल आया, वो बड़ा देखते थे हम लोग बेडरूम में. फिर वो 2-3 सीरियल्स हो गए. फिर वो बेडरूम मतलब ड्राइंग रूम से बेडरूम में चला गया, कलर्ड हो गया. उसके बाद ये मोबाइल आ गया. ये तो जेब नहीं है तो आप जेब में खोल के आप देखते हो पूरा दिन. और ये एडिक्शन है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू, और मेरे साथ भी होती है. एवरीबडी इज फेसिंग दिस एडिक्शन, बिकॉज द मोमेंट यू आर सीइंग इट, ये ऐसी बनी हुई है चीज़, जैसे ये नशे हमें वशीभूत कर लेती है. ये हम स्क्रोल ही करते रहते हैं इसको, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख. बिकॉज इनका तो कमाई है. दीज आर द पीपल हु आर अर्निंग मनी. वी आर द पीपल हु आर गेटिंग सिक मेंटली. ये सबसे बड़ा कॉज है डिप्रेशन का. सो आपके बच्चों के हाथ में ये मोबाइल फ़ोन्स हैं. टीचर्स को मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपके बच्चों के हाथ में वो सब नॉलेज है जो आपको पता ही नहीं कि उनको पता होगी. बिकॉज बेबी डिडंट हैव इट एट दैट टाइम. सो जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं फ्रॉम दिस मोबाइल एंड सोशल मीडिया, इट्स टोटली करप्टेड ऑल द फाइंड्स इन देयर माइंड. इसलिए इनके अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, बहुत फ़र्क है. तो इमोशनल वेलनेस ये होती है कि मैं अपने इमोशंस को तो जानूँ. तो मैं अपने को जानूँ ना. मैं दुनिया को ठीक तब करूँगी जब मैं खुद ही तो ठीक हूँ. तो द फोकस इज फर्स्ट ऑन योरसेल्फ. अपने इमोशंस को जानिए. इमोशनल वेलनेस अपनी बढ़ाइए, अपना EQ बढ़ाइए. अगर आप खुश हैं, अगर आप रेजिलिएंट हैं, EQ मतलब आप अपने को जान रहे हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस समय ये रीज़न है, मुझे गुस्से को शांत करना, या मुझे अभी डर लग रहा है, मुझे डर को शांत करना. आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जान रहे हैं. आप पहचान रहे हैं कि मैं परेशान हूँ, अपने को शांत करना जान रहे हैं, तो आपका EQ हाई है. लेकिन अगर आपका EQ लो है तो आपका एमिग्डाला हाईजैक हो गया. अब एमिग्डाला हाईजैक एक बहुत ही भयंकर टर्म है, हाईजैक.
होता क्या है मैं आपको बता दूं बहुत ही सरल भाषा में, दो दिमाग होते हैं हमारे। एक हमारा इमोशनल ब्रेन है जो अमिगडाला कहलाता है, पीछे की तरफ होता है। एक हमारा ये सामने का ब्रेन है जो ब्रेन होता है। फ्रंटल ब्रेन हमारा लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारा सामने का फ्रंटल ब्रेन करता है। आपको बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कितना सोच समझ के करो, ये सोचने समझने का काम ये फ्रंटल लोग करते हैं। नीचे है हमारा इमोशनल, जो हमें गुस्से आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, या हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ये इमोशंस हमारे फाइट और फ्लाइट वाले अमिगडाला में हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो क्या होता है अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हमारा अमिगडाला जो है, कई बार जिन लोगों का EQ लो है तो उसी को हाई करना है ना, तो अपने अपने आप को पहचानना है। तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, ये अमिगडाला फायर करता है एकदम से, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कॉर्टिसोल निकालता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये इस फ्रंटल वाले लोग को ओवरकम कर लेता है। हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम चीखने लगते हैं, हमें चिल्लाने लगते हैं। तो हम चीखते चिल्लाते इसलिए है क्योंकि हमारा इमोशनल ब्रेन हमारे रैशनल ब्रेन को हाईजैक कर, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर। तो किसी भी परिस्थिति में टीचर्स को मैं ये बोलूँगी कि अपने इमोशनल ब्रेन को इमोशनली हाईजैक मत होने दीजिए, चाहे बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए। माइंडफुल रहिए, डीप ब्रीथ करिए, शांत रहिए, सेल्फ टॉक करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको अपने फ्रंटल ब्रेन से सोचने समझने लॉजिकल रहने की कोशिश करिए। अगर आपका इमोशनल ब्रेन हावी हो गया तो आप फिर अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इमोशनल वेलनेस मतलब अपना मन शांत रखना है, चाहे कोई परिस्थिति है। मैंने पैट्रिशिया मैम को कभी भी नाराज होकर देखा ही नहीं है। कुछ भी आए, she gave a talk, एक हमने टीचर खुद से बनाई थी, तो मैम भी इसमें she gave such a guidance talk। शांत रहना ना, हमें अपने सोचने समझने से हमें रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट मतलब किसी ने कुछ किया, आपने तुरंत उसका जवाब दे दिया, तो वो रिएक्ट हमारा अमिगडाला हाईजैक हो जाता है। We have to respond, सोच समझ के जवाब देना। तो नंबर 1 रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना। कोई भी बात आए चीखना नहीं है। ये याद रखिए, अगर आप अपने बच्चों में क्लास में जाते चीखेंगे तो आपके बच्चे बाहर निकल के दूसरे बच्चों पे चीखेंगे, क्योंकि आप रोल मॉडल हो। तो क्लास अब जब शुरू करो तो 2 मिनट किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करो, शांति से शुरू करो, ताकि शांति बच्चों को जाए। नंबर 2 माइंडफुल रहना है, प्रेजेंट में बात करनी है, गुस्सा या चिड़चिड़ापन या वो नहीं करना है। बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मैंने बोला आपकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अपनी समस्याएं हैं, उनको अपना इमोशनल बैगेज एक तरफ रख के यू हैव टू फोकस ऑन योर चिल्ड्रन, क्योंकि वो वही करेंगे जो आप करेंगे, क्योंकि आप उनके पेरेंट भी हैं, टीचर भी हैं। और नंबर 3 मैं आपको बोलूँगी रेजिलियंस पैदा और एम्पैथी। एम्पैथी मतलब इमोशनल वेलनेस की डेफिनेशन मैंने आपको दी ना, अपने इमोशंस पहचानने हैं, लेकिन साथ साथ अपने बच्चों के इमोशंस भी जानने हैं। हर बच्चा एक कहानी है, हर इंसान एक कहानी है, हम सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। तो हर बच्चा किस परिस्थिति से आ रहा है, घर से क्या देख के आ रहा है, क्या सुन के आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सब that shows in how he is behaving in a school and class. So you have to understand, empathy होती है कि आप अपने बच्चे को उसकी इमोशनल्स के बारे में आप समझ रहे हैं, तो लिसन करिए। इमोशन समझना मतलब समय दीजिए, अपने बच्चों से बात करिए। एक टीचर थी, वो कह रही पूरा बैच निकल गया, मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चों की इंडिविजुअल आवाज़ें कैसी सुनने का मौका ही नहीं मिलता, पढ़ाते चले जाते हैं। So what I feel is talk to your children। अगर आप उनकी सुनोगे, आपको उनके बारे में इतना पता चलेगा और आप उनका इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं। रेजिलियंस मतलब रेजिलियंट बनिए, मतलब कोई भी परिस्थिति आई है बच्चों को सिखाइए उसको भूल के बाउंस बैक कैसे करना है। मतलब उसी चीज़ में चक्रव्यूह में नहीं खोना कि कल फेल हो गया तो आज टेस्ट नहीं दूंगा, नहीं हो गया आज क्या करना है, रेजिलियंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्पैथी डेवलप करना। एम्पैथी मतलब अपने मन में सहानुभूति नहीं चाहिए किसी को,
nobody wants pity, nobody wants कि दया करो, नहीं। Empathy मतलब आप समझिए कि वो बच्चा इस परिस्थिति से आया। टीचर्स को ये पता नहीं चलता कि बच्चा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। Is it because उसको समझ नहीं आ रही है? Is it because वो घर से हाइपर एक्टिव हो गया यार? Is it because और कोई रीजन है? तो जब आप बच्चे की सुनेंगे तो आपको कई सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे कि आप इमोशनली उससे बॉन्ड हो सकेंगे, उसके बारे में जान सकेंगे। दिस इज कॉल्ड एम्पैथी, दूसरे के बारे में समझना। तो आई थिंक इतना बहुत हो गया। बख्शी जी ने तो मुझे बोलेगा।